ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Okay, thank you everybody for joining. Very sorry इतने दिन से हो नहीं पाई कॉन्फ्रेंस कॉल। मैं कोशिश भी कर रहा था लेकिन बहुत स्केड्यूल बिजी हो गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे भगवत गीता, जो हम डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो can everybody mute their mics if they don't want to speak? Okay, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, कौन से श्लोक पे हमने खत्म किया था? किसी को याद है या बहुत दिन हो गए? एनीबडी रिमेम्बर कि लास्ट टाइम कहाँ पे स्टॉप किया था? हेलो। यस भव्या, हरे कृष्णा, बताओ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। हमने चैप्टर श्लोक 20 करा था। आई थिंक 24 हेलो, तक am I audible? हाँ भव्या, यू आर ऑडिबल। Yes. Okay. Yes, I think we did 25th last. हाँ, तो 24 तक तो मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो। 25th हमने स्टार्ट भी किया था, 25th का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो सेकंड चैप्टर तो हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमने एंड किया था। बीच में हम समराइज कर सकते हैं जो जो चीजें हो चुकी हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि हम यहीं पे देख सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे भगवत गीता सेकंड चैप्टर। 25th से ही स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा 25th को कवर करेंगे, फिर क्विकली रिव्यू करके फिर वील गो फॉरवर्ड, ठीक है ना? रेपिटेशन इज ऑलवेज गुड भगवत गीता के लिए। जितना हम दोबारा करेंगे उतना याद होगा हमें। ओके, तो अब हम 2.25 से स्टार्ट करेंगे। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, प्लीज रिपीट कीजिए। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। ओके, तो अब ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? बेटा बात कम करो बेटा। I can read. हाँ, पढ़िए। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Purport. Should I read? हाँ, प्लीज रीड। One second. As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence experimentally beyond the proof of Shruti or Vedic wisdom. We have to accept this truth because there's no other source of understanding the existence of the soul, although it is a fact of by perception. There are many things we have to accept solely on grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is consciousness and conscious
That also is the statement of the Vedas. And we have to accept that. Unlike the bodily changes, there is no change in the soul. As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. The supreme soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the supreme personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways, just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. Hare Krishna. Okay, thank you for reading. तो बेसिकली यहाँ पे सोल के बारे में और बताया गया है। जैसे हमें पता है हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं, सुना भी है भगवत गीता में। लेकिन एक आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं आत्मा की, क्या होता है इसका मतलब, हमारा क्या इच्छाएं हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, ये सब हमें पता होगा तभी हम सही मायने में खुश रह पाएंगे। क्योंकि असलियत में हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, सबको खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। तो कैसे हम खुश रहेंगे? तो वो तब रहेंगे जब हमें पता होगा कि हम हैं कौन वास्तव में। वास्तव में शरीर अगर सोचते रहेंगे कि हम शरीर हैं, जितना खा लो उतना खुशी मिलेगी, जितना कंफर्टेबल रह लो उतनी खुशी मिलेगी, और फिर जब हमें वो नहीं मिलती, हम खाते आते हैं, खुशी तो थोड़ी देर की मिलती है, चाहे हम केक, पेस्ट्री, गुलाब जामुन थोड़ा खा लें, रसगुल्ले, जो भी हमारी फेवरेट डिश है, लेकिन वो थोड़ी देर तक रहती है, फिर चली जाती है खुशी। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई आज मैंने गुलाब जामुन खाया है, अब मेरे को कोई और दुख आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता, या मैं दुखी नहीं होऊंगा परिस्थितियों के आने से। इनफैक्ट जितना भी हम फीड करते हैं अपनी शरीर को कंफर्ट से और डेलिकेसी से, उतनी उसको आदत पड़ती आती है, और उतनी जब वो चीज नहीं मिलती तो उसका जो सिचुएशन फेस नहीं कर सकती बॉडी, माइंड भी नहीं फेस कर सकती, क्योंकि माइंड को आदत पड़ जाती है। जैसे कोई भी आदत आप ले लो, हैबिट ले लो, वो छूटती नहीं है एक बार आने की। तो ये शरीर को सिर्फ सेटिस्फाई और कंफर्टेबल करने से तो खुशी नहीं मिल रही है, ये तो लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है। तो फिर कैसे मिलेगी खुशी? हाँ, थोड़ी सी इनिशियल रिलीफ जरूर मिल जाता है, लेकिन वो सही मायने में खुशी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर कहीं आपके घाव है, वुंड्स हैं, या कोई रैशेस हो रहे हैं, तो कई बार रैश को खारिज करने में बड़ा मजा आता है कि रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अगर हम उसको खारिज करते जाए तो वो खराब हो जाता है। कई बार डॉक्टर्स वगैरह आपको ये रिकमेंड करेंगे, नहीं इसको इच बिल्कुल नहीं करना है, इसको ये क्रीम लगाओ, ये पाउडर लगाओ और रेजिस्ट करो। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर ट्रॉमा नहीं होता है, इंजरी नहीं होती और ज्यादा, और वो हील करने में बेटर रहता है। उसी तरीके से कई बारी लोगों को डायबिटीज है, या लोगों के बीमारी के हिसाब से कई चीजें वो नहीं खा सकते, उनको रिकमेंडेशन है कि नहीं भाई आपने नमक नहीं ज्यादा खाना, या आपने खाना में मीठा नहीं खाना। वो बड़ा मुश्किल लगता है वो फॉलो कर पाना। जिस तरीके से एक खारिश करना एक रैश पे मुश्किल लगता है कि ना करना खारिश। तो ये सब जो चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बताई जाती हैं। शॉर्ट टर्म में मुश्किल लगती है, लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट होता है। Some disturbance is coming. Somebody's mic is not on mute. सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो फिर थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझे कि हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं। क्या ये आत्मा जो है वो भी तब खुश हो जाती है जब शरीर खुश होता है या सेटिस्फाइड होता है? तो आंसर है कि शरीर को उसकी नीड्स, जरूरतें पूरी करनी है। आत्मा की जरूरतें क्या है हमको वो समझना पड़ेगा, और अगर हम आत्मा की जरूरतें पूरी करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक गाड़ी है हमारे पास, तो गाड़ी की अपनी जरूरतें हैं, गाड़ी की पूरी जरूरतें हमें करनी है, उसको मेंटेन करके रखना है, ऑयलिंग, सर्विसिंग, चेंज वो सब करना है, उसको अंदर पेट्रोल डालना है। उसी तरह शरीर को साफ सुथरा रखना है, क्लीनलीनेस,
शरीर के लिए खाना की जरूरत है और वो सब चीजें, लेकिन जितनी जरूरत है उतना करना है। और शरीर के अंदर एक आत्मा है जो एक्चुअली में हम है, हम ये शरीर नहीं है। हमको लगता है कि शायद हम ये शरीर है और हमारे अंदर एक आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ही है आत्मा। आत्मा मीन्स मैं, जो मैं हूं। पहले भी कई बार डिस्कस कर सके हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा है कि रिपीट करना इन चीजों को जरूरी है ताकि हमें पता लगे। तो अगर हम है आत्मा, तो आत्मा की क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहले तो हमने देखा कि आत्मा की क्या साइज होता है, ये हमने देखा। फिर यहाँ लिखा है कि आत्मा जो इतनी छोटी होती है कि वो इनविजिबल होती है, और इवन अगर हमें कोई मिल भी जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई टेलीस्कोप हम लाके यूं देखने लगे कि हाँ भाई देखें जरा आत्मा कहाँ है, तो उससे आत्मा नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु वो मटेरियल चीज नहीं है, मैटर की बनी हुई नहीं है, तो वो इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है इनकंसीवेबल का मतलब? कौन बताएगा? जिसकी उत्पत्ति पॉसिबल नहीं है, मींस जिसको कंसीव मींस एक्चुअली धारण करना, मींस गर्भ धारण काइंड ऑफ ना। कंसीव, यहाँ पे कंसीव का मतलब है हाँ समझना, उसको समझ लेना अपने एबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से हम समझ नहीं सकते, इनकंसीवेबल है आत्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ नहीं सकते? इसका ये मतलब है कि कई बार लोग कहते हैं कि हाँ हम कोई रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके या अपने आप स्टडी करके उसको समझ लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको तभी जान सकते हैं हम, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर्पट में लिखा है, जब हम श्रुति को के थ्रू अप्रोच करते हैं। और श्रुति क्या होती है? श्रुति का मतलब क्या होता है? साउंड। हाँ, एक मतलब श्रुति का वो भी है, लेकिन श्रुति इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है उसका? रिलेटेड ही है, साउंड से हम हियर करते हैं, तो हियरिंग कहाँ से होनी चाहिए? वैदिक स्क्रिप्चर्स में से, वेदों में से, ठीक है ना? तो वेदों के अंदर भी जो नॉलेज है उसको श्रुति कहा जाता है। तो श्रुति के थ्रू सुनने, समझने और भगवान की कृपा के थ्रू ही हम उसको समझ सकते हैं, तब वो हमारे को समझ में आएगी। अदरवाइज इट इज इनकंसीवेबल, हमें समझ में नहीं आ सकती कि अरे साइज तो इतना छोटा है, लेकिन साइज आत्मा का कैसे हो सकता है, और कैसे भगवान के साथ रिलेट करती है आत्मा, ये सब चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है समझनी। तो इसलिए इनकंसीवेबल है। और इम्यूटेबल, म्यूटेशन होती है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सेल में, ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं म्यूटेशन हो गई, तो यहाँ पे सोल में कोई म्यूटेशन नहीं होती। तो ये म्यूटेशन वर्ड यहाँ पे क्या क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये है कि changes, it cannot यस, change. परफेक्ट, कि सोल कभी चेंज नहीं आता उसमें। किस तरीके का चेंज? जैसे कई सारी आत्माएं जुड़ के क्लम्प टुगेदर हो जाएं और एक बड़ी सी आत्मा बन जाए, परमात्मा हो गई है, सुपर सोल। ऐसा नहीं होता, और ना ही कोई सुपर सोल बहुत बड़ी है उसमें से तोड़ टूट के जा रही है, तो ऐसे उसके अंदर विकार नहीं आ रहा। तो ये इम्यूटेबल है, ठीक है। Also, we can refer this point like the soul cannot have bodily changes, if that what immutable means. हाँ, करेक्ट करेक्ट। Yeah. जैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं उस प्रकार से सोल में, आत्मा में नहीं होती चेंजेस। तो ये सब सोचने के बाद, ये सब समझने के बाद, यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। इसलिए शरीर के लिए आप मत परेशान हो, ऐसे बता रहे हैं कृष्णा, ठीक है। और पर्पट ये बेसिकली हमने जो जो पॉइंट्स है पर्पट के वो ब्रीफ में डिस्कस कर लिए हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? Yes, I want to ask one question. हाँ जी, बताइए Hello. भाभी। In the starting, why are we referring soul as he and his? हाँ, We that's a good discussed point. that there is the soul is not like
there's no he or she, then why it is mentioned as करेक्ट। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप हिंदी या संस्कृत में देखते हो तो उसमें ये ही शी वर्ड यूज नहीं होते, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश में अब ट्रांसलेट करना है आपको। इट जो वर्ड है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज होता है। ही और शी जो वर्ड है वो लिविंग चीजों के लिए यूज होता है। आप ही स्लैश शी लगा सकते हो अगर आपको लगाना है, मगर वो भी मिसनॉमर होता है क्योंकि ही स्लैश शी में जनरली हम एक को लेते हैं, या ही या शी, लेकिन सोल ना ही है ना शी है। तो दिस इज इनकैपेबिलिटी एंड लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड दिस। उसके अंदर लिमिटेशंस है समझने। लेकिन अगर आप संस्कृत में और हिंदी में देखोगे तो वहां पे हम ऐसे ही शी लेते ही नहीं है। वहां पे हम कहते हैं कि उसको, आत्मा को, ठीक है ना, इसको, उसको, हम ऐसे बोलते हैं। हम ही या शी वर्ड ऐसे यूज नहीं करते, वो सेम ही रहता है हमारे लिए। Does it make sense? yes. And one more thing I want to ask, 1 second. जैसे कई बार What आप is भगवान को भी the देखोगे meaning लिखा of हुआ ही, भगवान को भी जो यहाँ पे लिखा होता है ही, लेकिन भगवान तो ही और शी से परे हैं। वो कोई ही और शी की कैटेगरी में फिट ही नहीं होते, है कि नहीं? क्योंकि ही और शी तो जनरली हम ह्यूमंस के लिए या लिविंग एंटिटीज के लिए करते हैं, और भगवान तो जीवा है ही नहीं, वो तो परमात्मा है। तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की लिमिटेशन के वजह से हमारे को ये यूज करना पड़ता है ताकि कन्वे हो जो हम पॉइंट मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बताओ भव्य, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? yes, yes. Yeah, I wanted to ask the meaning of infinitesimal or इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइट का ऑपोजिट होता है इनफाइनाइटेसिमल, okay. Thank ठीक you. है। हाँ, जैसे इनफाइनाइट बड़ा होता है उसका ऑपोजिट इनफाइनाइटेसिमल। ओके, सबको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? Yes, it's visible. चलो हाँ बढ़िया। जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम करेंगे 26th श्लोका, सेकंड चैप्टर भगवद गीता। ओके, प्लीज रिपीट कीजिए। अथा चैनम नित्यजातम अथ चैनं चैनं नित्यजातं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नैनं शोचितुमर्हसि। परफेक्ट। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Okay, I will read. हाँ भव्य आप पढ़ो। If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. Purport. There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhists, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokayityakas and Vaibhasikas. Such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain stage, the life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on the philosophy. Currently, many pseudo-religions, now becoming fashionable in America, are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. Even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhasika philosophy,
there would still have been no cause for lamentation. No one laments the loss of a certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to the Vaibhasika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reactions due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabahu, mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhasikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow his principles. Hare Krishna. Thank हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी यहाँ क्या क्या हो रहा है? यहाँ कृष्ण दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आइडिया तो कृष्ण का कन्वे करने का ये है अर्जुन को कि क्या फाउंडेशनल रीजन होने चाहिए जिसकी वजह से आपको युद्ध करना चाहिए, कि आपको अपने जो फोकस है अपना रखना चाहिए, यहाँ पे जो कर्तव्य है आपका, जो धर्म है आपका, उस पे। तो कृष्ण ने पहले आपको ये बताया कि सही तरीके से, सही लॉजिक और रीजन से कि क्या आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं और कैसे करना चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि चलो अगर मान भी लो, कोई ये भी कह दे कि भाई ये आत्मा तो मैं मानता नहीं हूं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है या आत्मा है, हमारे हिसाब से तो कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि एक ही जिंदगी है भाई, जो आएगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी बस। तो कह रहे हैं अगर ऐसा भी कोई सोचे, क्योंकि ऐसे फिलोसोफर, ऐसे लोग, ऐसी धारणाओं वाले लोग तब भी थे और अभी भी हैं। पहले के टाइम में यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे लोग थे, लोकयातिकास एंड वैभासिकास, जो कि ऐसा सोचते थे, ऐसी फिलोसफीज थी कि आत्मा जो है वो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से पैदा हो रही है और वो मर रही है एट द टाइम ऑफ डेथ। और वो आत्मा भी वर्ड नहीं यूज करेंगे, वो कहेंगे कॉन्शियसनेस या जीव। जैसे आजकल क्या होता है, आप देखो एक मिले और यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था 1950s में, आप लोगों को शायद स्कूल में याद होगा, बुक्स में पढ़ाते हैं ऐसे। तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो ऐसे कई सारी चीजें उन्होंने लेबोरेटरी में रखी, केमिकल्स रखे और उससे एक्सपेरिमेंट करा और उससे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे प्रोटीन के जैसे केमिकल स्ट्रक्चर के कुछ उनको वो मिले आउटकम। तो उससे उन्होंने हाइपोथेसिस ये बनाया कि अरे ये प्रोटीन आ गए, अब इससे लाइफ भी आ जाती है। ऐसे ही हुआ होगा जब शुरू में लाइफ बॉर्न हुई थी अर्थ में, एक प्राइमोडियल सूप था, प्राइमोडियल सूप के अंदर ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस थी जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स बने जिससे डीएनए बन गया और डीएनए से लाइफ बन गई। ऐसी थ्योरी उन्होंने अपने आप प्रपोज कर दी। अब ऐसे होने के चांसेस जो हैं वो इतने रिमोट हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जितना डेलिकेट स्ट्रक्चर है एक डीएनए का, जितना सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, जितनी आप सेल को अगर आप डिटेल में देखोगे, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को, सारे ऑर्गन्स को, कैसे वो काम कर रहे हैं, आपको हैरानगी हो जाएगी। आप सोचोगे ये ऐसे हो नहीं सकता कि बाई चांस हो। लेकिन साइंटिस्ट कहीं ना कहीं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें बाई चांस हुई है, इसमें कोई इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है, कोई इंटेलिजेंट क्रिएशन का हाथ नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसलेस है और अनसाइंटिफिक है। नहीं, कुछ लोग लगे हुए हैं इसको प्रूव करने में। तो ऐसे फिलोसोफर्स तब भी थे और आज भी हैं। तो कृष्ण यहाँ पे उनके लिए बता रहे हैं कि अगर जो ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी कोई, अगर तुम
हालांकि तुम महाबाह हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे में इंटेलिजेंस है, तुम अच्छे जगह से पढ़े हुए हो, तुम्हारे को नॉलेज है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे लोगों की बात भी, धारणाओं में से भी चलो, तब भी तुम्हें लड़ने से हटने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, तब भी तुम्हें फाइट करना चाहिए। और यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में बताया है। देखो, there is always a class of philosopher almost akin to Buddhists who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. अब बुद्धिस्ट का बड़ा peculiar concept है। बुद्धिस्ट जो है वो आत्मा पे इतना विश्वास नहीं करते। एक्चुअली बुद्धिस्ट जो है वो रिलीजन ना, वो भगवान पे भी विश्वास नहीं करते। उनका जो पूरा रिलीजन ही है वो एथीस्टिक या प्रीथीस्टिक रिलीजन। एथीस्टिक मींस भगवान पे ना विश्वास करना। एक्चुअली अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल एथीज्म हम वैदिक कल्चर के हिसाब से देखते हैं, उसमें एथीज्म का मतलब होता है जिनको वेदों में विश्वास ना हो। उसका ये मतलब नहीं होता सिर्फ कि जो भगवान पे ना विश्वास, नहीं, वेदों में जो विश्वास ना, वो बंदा एथीस्ट है। तो वो कहते हैं मैं वेद नहीं मानता, तो वो एथीस्ट, चाहे वो कहे भगवान है नहीं है, उससे कोई मतलब। तो ये एक्चुअल एथिज्म की डेफिनेशन। बट अगर कोई ये भी सोचे कि हाँ भगवान के हिसाब से भी कोई डिफाइन करे कि भाई एथिज्म है कि भगवान नहीं, तो उसमें भी बुद्धिस्ट जो है वो एथिस्टिक रिलीजन में आते हैं। और प्रीथीस्टिक मींस उनमें कुछ धारणाएं हैं रिलीजन की, लेकिन वो एक्चुअली टोटल साइंटिफिक थीस्टिकल रिलीजन नहीं बना है, इसलिए उसको प्रीथीस्टिक कहते हैं। तो ये बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें क्या है बड़ी पेक्यूलियर, कि वो रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन वो आत्मा में बिलीव नहीं करते। तो रीइंकार्नेट हो क्या रहा है? तो हो क्या रहा है रीइंकार्नेट? अगर कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो जाता क्या है? तो वो आत्मा जाती है। वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो भूल जाते हैं। तो ये पॉइंट है रीइंकार्नेशन का। समझ में आ रही है सबको? अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है किसी का? अतुल भैया, मैं एक चीज पूछूं आपसे। हाँ बताइए राशिदा। जो आपने अभी जैसे बुद्धिज्म का बोला, और हमारे यहाँ पे जैसे जहाँ हम दिल्ली में अभी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा ये बुद्धिज्म का ना हो गया कि यू शुड जॉइन बुद्धिज्म एंड यू शुड चांट दिस मंत्रा, एंड पीपल आर कमिंग एंड टेलिंग कि मैं इतनी प्रॉब्लम में था, मैंने ये मंत्र चैंट किया जो बुद्धिज्म का है, एंड मेरा ये काम हो गया एंड ऑल दैट। तो हमारे घर में भी लोग आए थे जो हमारे जो सोसाइटीज इन्होंने बनाई हुई है। तो आई जस्ट आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन एंड एवरीवन वाज हिंदू यहाँ पे। तो आई जस्ट आस्क्ड देम वन क्वेश्चन कि आप लोग अगर जो बुद्धिज्म मेरे को मतलब आप जैसे चाहते हो कि मैं बुद्धिज्म ज्वाइन करूं, एंड बुद्धिज्म का और जो हमारे सनातन धर्म का तो मोटिव एक ही है। They said yes, but then I questioned them कि why can't I study my Hindu dharma या Bhagavad Gita instead of coming and chanting Buddhism with you? So just tell me, was I wrong here or something like उनका that? क्या रिस्पॉन्स था? उनका क्या रिस्पॉन्स था? उनका मतलब ऑनेस्टली मेरे को समझ नहीं आया। कहते नहीं, हम लोग बुद्धिज्म में हम ये नहीं कहते कि आप अपने रिलीजन को छोड़ो या पूजा पाठ वगैरह छोड़ो, ये करो, तो आप वो भी करो, बट यू स्टार्ट चैंटिंग दिस थिंग। बुद्धिज्म का जो ये नम्यो रेंगे क्यों इनका मंत्र है, तो उन्होंने मुझे यही बोला। इट टुक मतलब मैंने काफी बहुत लोग आए हमारे घर में, जैसे होता है ना। सो जैसे हम लोग, आप जैसे भगवत गीता का कर रहे हो, आप हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहे हो कि हमें भगवत गीता ज्वाइन करना है या नहीं करना। वहां पे बुद्धिज्म में मुझे ऐसे लगता है उन लोगों ने आके जैसे वो कर दिया था कि जैसे होता है ना, इनडायरेक्टली करना, फोर्स करना कि आप करो, आपके साथ ये अच्छा होगा, आपके साथ वो अच्छा होगा। तो रुक जाता है, कोई बात नहीं। फाइनली आई टोल्ड देम कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड जो भी गुरु वगैरह सब है, बट आई थिंक मैं पहले अपना हिंदू धर्म वो करूंगी, सनातन धर्म को पहले प्रेफरेंस देके, उसके बाद में मतलब हमारे हिंदू इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मंत्र है, चाहे माँ मृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, इससे मुझे पीस मिल सकता है, इससे भी मेरा काम हो सकता है। तो मैं नम्यो रहेंगे क्यों मतलब इतना वो करूं। तो इट टुक अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड एवरीथिंग,
एंड देयर वाज नोबडी हियर टू सपोर्ट माय बैक। तो मुझे पता नहीं, बहुत टाइम से जब भी इन लोगों से मैं मिलती हूँ मुझे लगता है कि मैं ऑफेंसिव तो नहीं थी या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ऐसे। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। एक्चुअली देखो हो मेरे क्या को रहा है, हाँ बताओ। नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म का आपने एक बार पहले हमें बताया था, तब आई कुडंट रिलेट दिस टॉपिक। अभी आपने जैसे बुद्धिज्म का ये बताया है मीनिंग, तो मेरे को एकदम से आया कि मैं आपको ये बताऊं। हाँ, तो बेसिकली क्या है, बुद्धिज्म जो आजकल प्रैक्टिस होता है एकदम बोगस है। बोगस डजंट मीन कि उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, बट जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी बुद्धा की, वहां से एकदम उसका लेवल जो है उसको मिक्स करके उन्होंने खिचड़ी बना दी। जो बुद्धा ने बोला था उससे इसका कनेक्शन बहुत बहुत ज्यादा, और एक्चुअली बुद्धा ने प्रिडिक्ट भी किया था, और कई बुद्धिस्ट भी मानेंगे और बोलेंगे आपको कि हाँ ये तो बहुत चेंज हो गया अब बुद्ध। तो जो लॉर्ड बुद्धा है उनका कॉन्सेप्ट क्या था, और ये लोग जो आजकल कर रहे हैं वो ये है कि अगर उन्होंने मान लो इनको दिया सिल्वर दिया, ठीक है, तो सिल्वर को इन्होंने लेके उसके साथ एल्यूमिनियम, उसके साथ टिन, उसके साथ कॉपर, उसके साथ सब कुछ मिला लिया और सोचा कि ये बहुत वैल्यूएबल एलॉय बनेगा, मगर एक्चुअली बहुत ही खराब बन गए। ठीक है, उसके अंदर किसी की भी पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं रही। तो नो डाउट जो भी ऐसे क्या कहते हैं फिलॉसफीज हैं, अगर वो सही तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही। लेकिन लोगों की जनरली क्या इच्छाएं होती हैं, उनकी ये है कि ये मेरे डिजायर्स पूरे हो जाएंगे, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो इस चक्कर में ऐसे मंत्रों को फॉलो करते हैं या किसी मंदिर में जाके या किसी धारणा में जाके वो बनाते हैं। और जब उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तब तक वो करते रहते हैं, जब नहीं होती तो फिर उनको डाउट आने लग जाता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ। बट एक्चुअली भगवत गीता क्या बता रही है? भगवत गीता बता रही है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस तो आएगी ही आएगी। एथीस्ट की लाइफ में भी आती है, आपकी लाइफ में भी आएगी। आप कैसे उसको हैंडल करो, कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो, ये भगवत गीता की साइंस है, ये नॉलेज है भगवत गीता कि अर्जुन जो इतने ज्यादा जिसके अंदर सब कुछ क्वालिटीज थी पॉजिटिव, उसको भी भगवत गीता की जरूरत पड़ी थी। और जो भी मंत्र आपने बताए इनके लिए काफी रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, और इनके मीनिंग्स भी हैं। लेकिन जो मंत्र बुद्धिस्ट वगैरह चैंट करते हैं, वो उसका मतलब क्या है? क्या उनको पता है उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस उन्होंने आपको बताया क्या मतलब है उसका? उन्होंने बताया तो था, कुछ लोटस सूत्र होता है आपका। नहीं, मुझे वर्ड्स अभी का आज मतलब बताओ, वर्ड्स जो है उनका मीनिंग क्या है? मुझे उन्होंने पूरा प्रॉपर जैसे था वो शायद नहीं बताया ना, अगर बताया भी हो तो भैया ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है। एक्चुअली बट कई सारे लोगों को उसका खुद मीनिंग नहीं पता होता, जैसे हम भी कहीं गाते हैं, अगर आप देखोगे बुद्धिज्म में वो कई बारी ऐसे मंत्र रेपिटेशंस हैं। तो ये मंत्रों की सिग्निफिकेंस तो हर रिलीजन और ट्रेडिशन में है, कई सारे में, जैसे जैसे आप साउंड और उससे करते हो। कलयुग के लिए, इस युग के लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है, वो जो हम पहले भी डिस्कस किया है, वो शास्त्र में दिया हुआ है, वो है हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखो कितनी सारी संस्थाएं, कितने सारे रिलीजन है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, ये सब स्प्रेड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखो मुस्लिम नंबर 1 स्प्रेडिंग रिलीजन है। ऐसे नहीं कि वो दूसरों को नेसेसरली बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा होता है। अगर एन एवरेज देखो आप पूरे वर्ल्ड में, तो एक कपल जो है वो 2.6 चिल्ड्रन उनके होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में क्या है, एक कपल 8 बच्चे करते हैं, तो उस वजह से उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। उस तरह से आप देखोगे क्रिश्चियंस में एक सेक्ट है मोरमोन्स और जिहोवा विटनेस, ये बहुत ग्रो कर रहे हैं। और क्रिश्चियंस इवन अदरवाइज भी काफी ज्यादा स्प्रेड हुए।
इंडिया के अंदर तो प्रैक्टिकली जितने भी दूर दराज के गांव हैं उसमें सैकड़ों सैकड़ों लोग एक साथ क्रिश्चियन बनते हैं और नेचुरली उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है, उनको दूसरी चीजें भी देते हैं, चर्च में वेलकमिंग होता है। हमारे यहाँ मंदिर में कोई चला जाए मत्था टेकने तो कैसे वो पुजारी वो पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, उसे लाओ 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 लाओ। और वहां पे क्या है, वहां पे आपको देते हैं, बाइबल फ्री में देंगे, वहां पे आपको वेलकम करेंगे, सिखाएंगे। और पहले के टाइम में तो और बुरा था, लोगों को छूत की तरह से बिहेव करते थे कई जगह। तो ये सब चीजों की वजह से आप देखोगे कि जो हमारा भगवत गीता के टीचिंग और वेदों के टीचिंग था उसको सही तरीके से शेयर करने वाले लोगों की कमी हो गई बहुत सारी। उसकी वजह से लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और लोग जो हमारे ट्रेडिशन में जनरली हैं वो इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं कि सारे रास्ते भगवान को जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं। हालांकि ये गलत है, सारे रास्ते नहीं जाते भगवान। हाँ, कई सारे रास्ते जा सकते हैं लेकिन सारे नहीं जाते। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो भगवान के पास लेके जाएंगे, कुछ दूर लेके जाएंगे। हमें चूज करना है, हमारे को इसलिए इंटेलिजेंस दी गई है डिस्क्रिमिनेट करने की कि क्या रास्ते पे हमें चलना है और किस पे नहीं चलना। तो सारे रास्ते नहीं जाते लेकिन कई सारे जा सकते हैं। बाकी रिलीजन्स को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं जब तक वो बोनिफाइड रिलीजन्स हो, जब तक वो शास्त्रों के अनुकूल हो। और कई सारी चीजें अगर आप देखोगे बाइबल या इवन इस्लाम में, वो उनके प्रिंसिपल्स तो ठीक थे, हालांकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स ये हैं कि भगवान से कनेक्ट करना है। और उस तरीके से जो फॉलो करते हैं उसको, और प्योरली जो फॉलो करते हैं उनको बेनिफिट भी मिलता है, मगर ऐसे करने वालों की परसेंटेज बहुत कम है। और वही ऑन द अदर हैंड आप देखो तो रिसेंटली आप देखोगे भगवत गीता जो है, ये बुक पिछले 50 साल में इसका स्प्रेड शुरू हुआ, और आज वर्ल्ड के हर कंट्री में मंदिर आपको मिलेंगे इस्कॉन के, और वहां पे आपको दिखेगा कि भगवत गीता जो है उसका टीचिंग स्प्रेड कर रही है। और ये किसने शुरू किया? ये शुरू किया प्रभुपाद, जो कि फाउंडर हैं इस्कॉन के, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। वो अकेले, कोई पैसे नहीं थे उनके पास, कुछ नहीं था, कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान में लोगों के साथ शेयर करने का, और उनके गुरु ने उनको ये आदेश दिया था कि आपको ये अंग्रेजी स्पीकिंग लोगों के साथ शेयर करना है। वो काफी पढ़े लिखे थे प्रभुपाद, उनको इंग्लिश भी में भी अच्छी आती थी, तो उनको बोला कि आप जाके ये शेयर करो। और उन्होंने हिंदुस्तान में 70 साल तक कोशिश करी कि मैं थोड़ा यहाँ के लोगों को कल्टीवेट करके फिर जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान वालों ने उसकी टीचिंग्स को अच्छे से सीरियसली लिया नहीं। वो अपना कोई संस्थाएं, कोई धारणाएं, कोई ऐसे ऐसे चलते जा रहे थे। फिर प्रभुपाद गए अमेरिका। कैसे गए? किसी तरह से उन्होंने एक व्यक्ति को अप्रोच किया जिनकी बड़ी कंपनी थी, वो उनके लेक्चर सुनने के लिए आती थी लेडी, और वो मालकिन थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए अरेंज कर सकते हो एक टिकट अमेरिका के लिए। तो उन लेडी ने, वो भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने काफी कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आपके 70 साल के हो, आप इतने ओल्ड हो, अमेरिका कोल्ड है, वहां पे जाओगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हम नहीं ये चाहते। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है, मुझे करना ही है। उन्होंने इंसिस्ट किया, परसिस्ट किया, और पूरी तरह से उनसे निवेदन किया, और उनके जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को देख के जो सुमति मुरारजी हैं, जो लेडी हैं, उन्होंने कहा हाँ आपको मैं दूंगी। तो उन्होंने जाने के लिए उनको दिया कि हाँ भाई आप जाओ। 30 दिन लगे उन्हें शिप में, 2 हार्ट अटैक हुए शिप के अंदर, और जब वो अमेरिका पहुंचे तो कुछ ही दिन में उनको स्ट्रोक भी हो गया कुछ ही टाइम। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, आधी साइड बॉडी चलती नहीं। उनकी डिटर्मिनेशन थी कि भगवान की ये भगवत गीता की नॉलेज मुझे सबके साथ शेयर करनी है। भगवत गीता, उनके पास कोई हार्डली कुछ पैसे थे, उनके पास थोड़ी सी बुक्स थी, और
थोड़ा सा एक कांटेक्ट नंबर था कि जो व्यक्ति जिसके पास वो रह सकते हैं कुछ दिन के लिए बस। और धीरे धीरे वहां से उन्होंने छोड़ा। एक टाइम तो ऐसा था वो रोड पे आ गए थे, 70 साल का व्यक्ति। और यहाँ का कोल्ड वेदर, जो लोग आए नहीं अमेरिका, ठंड उन्होंने देखी नहीं है, वो कभी ये समझ नहीं सकते कि कितना मुश्किल है अमेरिका में बिना घर के आपको ठंडे वेदर में रहना। इवन घर भी हो आपके पास तो भी यहाँ ठंड में नहीं रह सकते आप, क्योंकि घर में आपको चाहिए पूरा हीटेड घर, हीट होनी चाहिए। और प्रभुपाद के पास तो कपड़े भी मिनिमल थे। और उस स्थिति में भी उनकी ये डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, उनके पास ऑप्शन थी घर वापस हिंदुस्तान वापस जाने की, लेकिन वहां यहाँ डटे रहे कई कई महीनों। और ये भगवत गीता जो है वो सबसे शेयर करना चाहते थे। कई महीने निकल गए, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 1 साल हुआ तो कुछ व्यक्ति जो थे, कुछ लड़के लड़कियां, उनका थोड़ा इंटरेस्ट आया। लेकिन ज्यादातर थे जो हिप्पीज थे, ड्रग एडिक्ट्स, स्मोकर्स, अल्कोहल, ये सब में उनका जो था हैबिट्स थी उनको ये सब। तो कोई उनको ऐसी बहुत अच्छी A1 क्लास की ऑडियंस नहीं मिल रही थी प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद ने उनको ये मंत्र दिया, उनके साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया। इसको गाना कीर्तन किया, लोगों ने वहां डांस किया, लोगों को प्रसाद बना के खिलाया, और थोड़ा थोड़ा भगवत गीता में से शेयर किया। और सिर्फ इसी से आने वाले महीनों में, सालों में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ोतरी हुई उनके प्रचार कार्य में। और आज की डेट ऐसी है जब कई कई लाखों लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से भगवत गीता के अंदर उसको समझने और फॉलो करने और शेयर करने में लग चुके हैं। जैसे आपके पास वो बुद्धिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे कई सारे अमेरिकन हैं जो जाते हैं दूसरे अमेरिकन के घर और भगवत गीता शेयर करते हैं उनके साथ। कई कई अमेरिकन है जो वैन में ही रहते हैं पूरे टाइम, और उनका क्या है मकसद कि भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करें, बेचें और भगवत गीता को शेयर करें। तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं, भगवत गीता से कोई संबंध नहीं उनका, वो लोगों का हृदय इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी भगवत गीता को दे रहे हैं, और दूसरों के दुख दर्द को मिटाने के लिए। क्योंकि उनको इतना बेनिफिट मिला भगवत गीता से कि उनको समझ में आ गया कि ये दूसरों के साथ शेयर करना सबसे बड़ा सोशल वर्क है, सबसे बड़ा कार्य है, और इसको अच्छे से सिखाना वो सबसे बड़ा। तो ये चीज अगर वो लोग कर सकते हैं तो कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम करें। और हमारे जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनमें ये सब चीजें सिखाने वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि वो लोग भी मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी में चलते हैं कि भाई हम दूसरे लोगों से पैसे ले लें, कोई डोनेशन दे दे आके, हमारा घर चलता रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। मंदिर ऐसे नहीं, मंदिर मीन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वहां पे बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बड़ा अच्छा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे ट्रेनिंग हो लोगों के लिए। भगवत गीता में कहीं वर्ड नहीं है हिंदू का, कहीं वर्ड नहीं है किसी रिलीजन का, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब चीजें, इस पे फोकस ही नहीं है। फोकस किस पे है भगवत गीता का, कि कैसे हर एक व्यक्ति को ये समझ में आए कि वो ये आत्मा नहीं है, शरीर है, और शरीर नहीं है, आत्मा है, और कैसे आत्मा को समझने के बाद वो क्या कार्य करे जिससे उसका भी कल्याण हो और सारे समाज का कल्याण। और उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मेरी मुरादें 1-2 पूरी हो जाए, या मेरे लिए कोई बड़े कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, क्योंकि एक बार ही कंफर्ट आएगा फिर डिस्कंफर्ट भी आएगा। कैसे उसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक माइंडसेट चाहिए, क्या टेंडेंसी चाहिए, तो ये पूरी ट्रेनिंग होती है भगवत गीता से, कंप्लीट होलिस्टिक साइंस ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। तो ऐसे बाकी सारे में आपको कुछ मिलेगा नहीं इतना ज्यादा, जो भी बाकी कहीं मिलेगा आपको भगवत गीता के अंदर वो है, और जो नहीं है बाकी जगह वो भी है। तो ये बेनिफिट है, इसलिए जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है, और जो इसको नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे हम कनेक्ट कर सकें, समझा सकें, बता सकें, ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए।
और पहले अगर हम खुद सॉलिडली सिचुएटेड हो भगवत गीता में, हमें पूरी अच्छी नॉलेज हो, तो हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का, वो आपको कभी दिखेगा नहीं। हजारों हजारों सालों में कोई जो नहीं कर पाया वो आज इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए हमारे को कनेक्ट करके समझना चाहिए कि क्या भगवत गीता के टीचिंग है, उसको और डिटेल में समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और जहाँ पे भी हो सके वहाँ हमारे को इसका फायदा उठाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का, और लोगों को कनेक्ट करना चाहिए जो जो लोग फेवरेबल हो। So does it make sense, रशिका? यस। तो इसलिए आप देखो कि जो लोग, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने सारी गलत हैबिट्स छूट गई उनकी, सारी जो भी ड्रग्स लेते थे, जो भी नशा करते थे, जो स्मोकिंग करते थे, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि इस मंत्र में इतना टेस्ट है कि बाकी सारी चीजों टेस्टलेस हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी अपने में उपलब्धि है जिसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ मिले, कोई डाउट हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो वहां पे लोकल इस्कॉन टेम्पल वाले होंगे जो सही मायने में थोड़े से, जिनको आपके साथ कनेक्शन बैठे, जिनके आपको लगे लेक्चर्स वगैरह अच्छे हैं, उनके साथ आप और डिस्कशन कर सकते हो, वहां जा सकते हो। ओके, मैंने एक लेक्चर ग्रुप में डाला था दामोदर लीला के पास टाइम में। किसी ने वो लेक्चर देखा? मैंने देखा है, हाफ देखा। अच्छा, आपने हाफ देखा, ओके। तो वो लेक्चर देख लो आप लोग, ये बड़ा अच्छा मंथ है, इस मंथ में अगर आप वो लेक्चर सुनोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद उसकी क्विज कर सकते हैं हम एक बार आने वाले दिनों में, ठीक? अच्छा अतुल, ये हाँ जी, जो बताइए। गुरु नानक जी का भी मैं सुनती हूँ कई बार सत्संग, वहाँ उनका भी होता है, तो उसमें कृष्ण भगवान जी का बहुत उसमें होता है नाम ना, तो मतलब वो बहुत ज्यादा नाम लेते हैं बीच बीच में कृष्ण भगवान जी का, वो सब। तो वही मैं देख रही थी कि वो लोग भी मानते थे ये सब चीजें ना, इनकी फिलोसफी और वो सब ना। ओ यस, डेफिनेटली, वो तो है ही। अब गुरु नानक जी के टाइम पे तो सेम ही रिलीजन था, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह, उनके जो 10वें गुरु हैं, गोविंद सिंह, नाम ही गोविंद पे है उनका। हाँ तो ये तो ठीक है कि है, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों की धारणा क्या है, वो बहुत जगह अगर आप खुदाई करोगे ना तो आपको कुआं नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह डीप खुदाई करनी पड़ेगी, तब मिलेगा कुआं का जल, पानी आपको तब मिलेगा। अब लोग क्या है, वो हर जगह जाके ना थोड़ा थोड़ा हर जगह से इधर उधर इकट्ठा करते रहते हैं, मगर उससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट नहीं हुई। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हमारे को सही मायने में ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ को, तो हमें स्टडी करनी चाहिए। अगर आप देखो, अब आपको कन्विक्शन हो गई कि हाँ भाई देखो, वो लोग भी यही कृष्णा की बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट भी कह रहे हैं अपना रिलीजन मत चेंज करो, यही रखो, ठीक है। हमने अपना देख लिया भगवत गीता में कितनी शक्ति है, हमारे को विश्वास भी है, तो भगवत गीता की सीरियस स्टडी क्यों ना करें हम? हमें विश्वास है भगवान कृष्ण पे, हमें पता है भगवत गीता, इसकी सीरियस स्टडी के लिए हम क्यों ना अपने आप को थोड़ा सा और एक्सर्ट करें। देखो, कोई भी अच्छी चीज पैसिवली नहीं होती। कोई कहे हाँ मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, वो किताब उठाए ना और वो सोचे कि मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में, तो ऐसा होगा नहीं। उसके लिए थोड़ा एक्टिव इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सही मायने में हमें भगवत गीता की वैल्यू समझनी है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, उसको समझना है कि उसमें भगवान ने उन्हें कहा क्या है, तो उसकी सीरियस स्टडी करनी पड़ेगी रिपीटेडली। क्योंकि भगवान, अगर हमारे को भगवान में फेथ है, कृष्णा में फेथ है भाई, अब बाकी रिलीजन वाले भी बोल रहे हैं, ये क्या कहते हैं, सिख रिलीजन वाले भी बोल रहे हैं गुरु नानक, तो इसका मतलब भगवत गीता को सब मान रहे हैं। अब क्यों ना मैं सीरियस स्टडी करूं भगवत गीता की, ये जरूरी है। अगर आप सीरियस स्टडी करो भगवत गीता की और आप देखो, हाँ एक बार आपने पढ़ी पूरी भगवत गीता, कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने एक बार पूरी भगवत गीता पढ़ ली? यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर एटलीस्ट एक बार पढ़ ली है, चाहे याद हो या ना याद हो, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ी है। मैंने खाली श्लोका पढ़े हैं, मीनिंग नहीं पढ़ा हुआ है। श्लोका, उसका मीनिंग और पर्पट सब चीजें, ये इस्कॉन की जो भगवत गीता एज इट इज, ये वाली, क्योंकि इसमें बड़ा सिंपल वे में समझाया गया। बाकी भगवत गीता लोग पढ़ के भी आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता,
लेकिन ये इसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताया गया कि आज के जमाने में न्यू मॉडर्न वर्ल्ड में इसको कैसे अप्लाई करें, बिकॉज अदरवाइज भगवत गीता समझनी उसको संस्कृत उसकी फिलॉसफी वो मुश्किल हो जाती है। और ये बड़े इजी वे में बताया है कि इवन अमेरिकन भी फॉलो कर पा रहे। तो ऐसे किसी ने अभी तक यहाँ पे स्टडी की है? तो ज्यादातर हम लोग जो हैं हमारे 20, 30, 40, 50 साल हो गए लाइफ के, ज्यादा हो गए कई लोगों के, तो हमें कब टाइम मिलेगा? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कम से कम इस लाइफ में हमारे को भगवत गीता बहुत बड़ी बुक नहीं है, सिर्फ 700 श्लोकास हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी सीरियस स्टडी कर लें एक बुक की, तो हमारी लाइफ जो है वो परफेक्ट हो सकती है। भगवत गीता भी आप देखोगे 2nd चैप्टर में 40th श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई अगर स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर कोई इस प्रोसेस में स्वल्प थोड़ा भी इनिशिएटिव लेता है, थोड़ा भी आगे बढ़ता है, तो वो ग्रेटेस्ट डेंजर से बच सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकता है। तो इसके लिए हमारे को इनिशिएटिव और सीरियस स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि देखो अभी पिछले दिनों में कई दिन आ नहीं पाया, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सका, क्योंकि हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट हो रही है पेशेंट्स की। कोरोना के पेशेंट्स भरे हुए हैं और दूसरे पेशेंट्स भी भरे हुए हैं। अब वो कई लोग तो बिल्कुल ठीक थे कुछ टाइम पहले, इतने बीमार भी नहीं थे। अगर उनकी ये हालत हो गई तो हमारे को क्या पता कि कल कितना टाइम है। और सिर्फ कोरोना नहीं, कितनी और चीजें हो जाती हैं लाइफ में। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, भगवान न करे। आजकल सब कुछ ट्रैफिक और इतना सब कुछ है। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ताकि हम भगवत गीता पढ़ सकें अच्छे से। अगर हम सोचेंगे कि ये लाइफ अपॉर्चुनिटी है, मेरे को अभी सीरियस स्टडी करनी चाहिए, तो हम करेंगे सीरियस स्टडी। सो डज इट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? Yes. Yes. Yes, Prabhuji. ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? गुड़ियामी कोई कमेंट? अतुल मैं सुन रही थी। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो लोग कर रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि कृष्णा का नाम, तो आपको अब कन्विक्शन हो जाना चाहिए कि भगवत गीता जो है उसमें मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप भगवत गीता की एक बार सीरियस स्टडी करो, चाहे बाकी चीजें आप करो नहीं करो, बाकी चीजों में से भी हम ले सकते हैं। नहीं मेरे को कोई लेकिन भगवत गीता की सीरियस स्टडी से इतना बेनिफिट मिलेगा। देखो भगवत गीता को हमारे को रखना चाहिए अपना मेन कोर्स फूड। बाकी सारी चीजों को थोड़ा चटनी अचार की तरह कभी ले लिया नहीं लिया, लेकिन भगवत गीता नहीं मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वो तो मैं तो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे नहीं अतुल, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मैं तो 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के अंदर हम कितना ही कर सकते हैं, पूरी स्टडी भी नहीं कर सकते भगवत गीता की। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक बारी जिसको थोड़ा सा भी फेथ है भगवत गीता में, वो थोड़ा सा सीरियस स्टडी करके देखे भगवत गीता की, और उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस लिखें कैसे कैसे वो क्वेश्चंस के आंसर हो। उससे क्या होगा, हमारी लाइफ जो है वो और ज्यादा एक क्लियर पाथ पे रहेगी। अदरवाइज दिन के अंदर इतने काम होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, टाइम बड़ा फास्ट बीतता है हमारा। तो ये चीज है कि बाकी जगह से अगर हमारे को ये पता लग रहा है कुछ, तो हम उसको भगवत गीता के अंदर स्टडी करके देख सकते हैं कि कैसे ये चीज मेरी भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे। क्योंकि धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप जहां पे भी जिसके भी सिचुएशन में आओगे, आप उस सिचुएशन से देखोगे कनेक्शन भगवत गीता से। तो इतनी प्रोफाउंड नॉलेज है इसकी, जिसका हम सबको फायदा हो सकता है। ठीक है ना? ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे को कोई आवाज आ नहीं रही किसी की। Yes. अच्छा, तो किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? नहीं तो हम एंड करेंगे, फिर हम और अंश इज सेइंग कि अगर आप लोग सब लेक्चर सुन लोगे तो फिर हम काहूट क्विज खेलेंगे। Okay. ठीक है, Okay, done. ओके अंश, ओके, थैंक यू वेरी मच, we'll end it here. ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, Hare Krishna. हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे
Hare Krishna.